Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope and pray that you are all fine and safe and utilizing these holidays in the best possible way. I am Binish Khurram and I'm going to give first lecture of unit number 7 to the students of class 9. The title of this unit is Sultan Ahmad Masjid. Sultan Ahmad Masjid, also known as the Blue Masjid, is not only one of the most fascinating pieces of Istanbul, but also a very important monument of Ottoman era. It is not only its magnificent appearance that makes it so popular, but also has many distinctive features separating it from other masjids of Turkey, such as being the first masjid with 6 minarets. While reading this unit, you will come to know about the unique Muslim architectural and historical significance of this masjid. Before we start our lesson, let me tell you that first of all, I'll read the sentence, then we'll tell the meanings of new and difficult words, and after that, I'll translate that base sentence into Urdu. I'll suggest you to listen to this translation carefully and write it down either in your notebooks or books. Now let's start its reading. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Now let's see some of the difficult and new words. The first one is the most impressive. It means इंतहाई मुतासिर कुन. Monuments, यादगार. अब हम इसको करते हैं उर्दू में तर्जुमा. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. And the difficult word, that is embellish, इसका मतलब होता है सजाना. Interior means अंदरूनी हिस्सा. उर्दू में इसका तर्जुमा हम करेंगे. ये नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से की तज़ीन करती हैं, नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. And the difficult words, Ottoman Empire, Sultanate-e-Osmaniya. और अगर द लास्ट वर्ड हम देखें, दो टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसका मतलब होता है सयाहों के लिए कशिश वाली कोई चीज़. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू. तुर्की के सबसे बड़े शहर और 1453 से 1923 तक की सल्तनत-ए-उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़े ये मस्जिद मकबूल तरीन सियाहती कशिश बन चुकी है. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान 1606 से 1616 के दरमियान तामीर हुई. As was the custom, this masjid, like the other masjids of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice. Some of the words are like custom, इसका मतलब होता है रवाज. फाउंडर, बानी, बनाने वाला किसी चीज़ को. हॉस्पिस, मुसाफिर खाना. उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं. रवाज के मुताबिक उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है.
The construction of the masjid started in 1609. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर, और इसका तर्जमा बनेगा उर्दू में, मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। The royal architect Sadafar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. अपॉइंटेड का मतलब आप कह सकते हैं कि मुकर्रर करना, और इंचार्ज सरबराह होता है। इसको उर्दू में हम इस तरह से तर्जुमा करेंगे, सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सैदफर महमद आगा को इस मंसूबे का सरबराह मुकर्रर किया। प्रोजेक्ट मंसूबा। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब होता है इफ्तिताही तकरीब। तर्जुमा करेंगे, इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई। अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से। इसको तर्जुमा करते हैं, बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में इस मस्जिद की तकमील को ना देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड in the reign of his successor मुस्तफ़ा I। रेन का मतलब होता है दौरे हुकूमत, और एक वर्ड है इसमें सक्सेसर। सक्सेसर जान नशीन को बोलते हैं, और इसको हम तर्जुमा करेंगे, ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church। इसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल भी एक वर्ड है। अच्छा, बैजेंटीनी चर्च को कर लेते हैं। इसका मतलब होता है बैजेंटीनी गिरजाघर, या आप इसको बैजेंटीनी कलीसा भी बोल सकते हैं। और आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी बता दूं, तामीराती तर्ज। इसको उर्दू में तर्जुमा करते हैं आप। नीली मस्जिद दोनों मस्जिद उस्मानिया और बैजेंटीनी कलीसा के तामीराती तर्ज की अक्कासी करती है। रिफ्लेक्ट्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है अक्कासी करना। हाया सूफिया अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, was also kept in view as a model। मुस्लिम फ़न तामीरात के मोजज़ात में से एक, ये जो हमने इसके अंदर एक फ्रेज पढ़ा है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, इसका ये तर्जुमा है, मुस्लिम फ़न तामीरात के मोजज़ात में से एक हाया सूफिया मस्जिद को भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। मॉडल वर्ड का मतलब है जी नमूना, और इसके अंदर था हमने केप्ट इन व्यू, मद्देनज़र रखना। ठीक है, लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं कि ट्रांसलेशन करते हैं। अनमैच्ड बेनज़ीर, बेमिसाल। स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, और मैजेस्टी जाहो जलाल से ये वर्ड निकला है, जलालत। उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं, इसमें हमने देखा है इवन टुडे, इसका मतलब होता है हत्ता के आज भी। नीली मस्जिद, हत्ता के आज भी नीली मस्जिद शान शौकत, जलालत और जसामत या पैमाइश में बेनज़ीर तस्वुर की जाती है। The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade। इसके अंदर एक दो मुश्किल वर्ड्स हैं। स्पेशियस होता है वसी, और वॉल्टेड का मतलब होता है मेहराबी। मेहराब एक फॉर्म होती है कंस्ट्रक्शन की। आर्केड राहदारी को बोलते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं, मस्जिद का सामने का वसी अहाता एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। सराउंडेड, घिरा हुआ। It has ablution facilities on both the sides। ablution facilities इसका मतलब होता है वजू की सहूलतें। both the sides, दोनों तरफ। उर्दू में इसका करते हैं तर्जुमा, इसमें दोनों जानिब
वज़ू की सहूलतें मुयस्सर हैं। In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. जब फाउंटेन वर्ड आप जानते हैं इसका मतलब होता है फुवारा, और मैग्नीट्यूड एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वुसअत। उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं। सेंटर एक वर्ड आपने पढ़ा है, सो वस्त में एक फुवारा है जो सहन की वुसअत के मुकाबले में कदरे छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. कोर्ट एंट्रेंस का मतलब है दरबार का दाखिली दरवाज़ा, और वेस्टर्न साइड जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं इनका मतलब है मगरबी जानिब। अपर पार्ट भी इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका मतलब है बलाई हिस्सा, और उर्दू में इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। मगरबी जानिब दरबार के दाखिली दरवाजे के बलाई हिस्से में एक भारी आहनी जंजीर लटकी हुई है। This side was meant for the Sultan alone. ये सिम सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस थी। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. जंजीर वहां इसलिए लगाई गई ताकि सुल्तान को दरबार में दाखिल होते वक्त हर मर्तबा अपना सर नीचा करना पड़े। लोअर हिज हेड, सर नीचा करना। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. इसके अंदर एक दो वर्ड है, सिंबॉलिक मतलब अलामती, जेस्चर आप इशारा कह सकते हैं, किनाया कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी आजिज़ी को कहते हैं। अगर लास्ट वर्ड आप देखें डिवाइन, तो ये वर्ड खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका हम तर्जुमा करेंगे, खुदा के हजूर हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक अलामती इशारा था। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. It's slightly longer sentence. There's the word this ceramic, चीनी की, और tiles आपको पता है टाइलों को कहते हैं। ट्यूलिप is the name of a flower, उर्दू में इसको कहते हैं गुले लाला, और डिज़ाइन तो आप सबको पता ही है, नक्शो निगार को बोलते हैं। चलिए इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं। 50 से ज़ायद मुख्तलिफ गुले लाला के नक्शो निगार में हाथ से बनी 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह ढकी हुई है। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits and cypress. इसमें flamboyant शोक, भड़कीला, और साइप्रस एक पौधा होता है, इसको हम उर्दू में कहते हैं सरू का पौधा। और उर्दू में अब इसका हम तर्जुमा करते हैं। गैलरी की सतह पर नक्शो निगार फूलों, फलों और सरू के पौधे की मूर्तों से शौक बन जाते हैं। The upper level of the interior is adorned with blue paint. अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह, adorn का मतलब होता है जी सजा हुआ, और इंटीरियर अंदरूनी, अपर लेवल बलाई सतह या बलाई हिस्सा। उर्दू में इसका बनेगा अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह नीले रोगन से सजाई गई है। More than 200 stained glass windows
with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandelier further illuminate it with their glow. इसके अंदर जी इंट्रिकेट पेचीदा डिज़ाइंस तो अब पहले ही डिस्कस किया हमने, नक्शो निगार होता है और शैंडलियर फानूस को कहते हैं। एक वर्ड है इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकाना, ये रोशन करना। अब इसका हम करते हैं जी बामुहावरा तर्जुमा और गौर से सुनिएगा। पेचीदा नक्शो निगारी के साथ मनकश शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियाँ इसके अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से मुनफरिद कर देती हैं और फानूस अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं। ग्लो जो वर्ड है उसको हमने मुनव्वर से ट्रांसलेट किया। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। आराइशों में आयाते कुरान पाक शामिल हैं। The floors are covered with carpets. फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. मार्बल संगमरमर को कहते हैं और इसके अंदर है जी एलिमेंट हम जुज़ू को कहते हैं, जुज़ हिस्सा, उर्दू में तर्जुमा करते हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ू मेहराब है, जिसे उम्दगी से तराशे संगमरमर से बनाया गया है। तराशे वर्ड मीनिंग है कर्व्ड का और फाइनली उम्दगी के साथ। To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. Pulpit का मतलब होता है मिंबर। तो मेहराब की दाएं जानिब एक खूब सजा हुआ मिंबर है। The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद का नक्शा ऐसा है कि हत्ता कि ये पुरहजूम होने के बावजूद मस्जिद में हर कोई इमाम को सुन और देख सकता है। The royal room is situated at the south-east corner. रॉयल रूम शाही कमरा, और इसका तर्जुमा करेंगे शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़े है। साउथ ईस्ट कॉर्नर का मतलब है जनूब मशरकी कोना। It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. और इसके अंदर हम जी जैड का मतलब होता है सब्ज नगीने, हरे रंग के जो है वो खूबसूरत पत्थर। तर्जुमा करते हैं, इसका अपना एक मिंबर है जिसे सब्ज नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था। The blue masjid has 6 minarets. Minarets मीनार को कहते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand, one each at the 4 corners of the masjid. चारों मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर एक एक हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. पेंसिल शेप मिनार्स का मतलब है पेंसिल नुमा मीनार, ठीक है, और बालकनीज को हम बाला खाने कह सकते हैं। तर्जुमा करते हैं इसका, इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के 3 बाला खाने हैं, जबकि बाकी 2 सामने सहन के सिरे पर मौजूद सिर्फ
दो बाला खानों के हामिल हैं। फोरकोट का मीनिंग हमने पहले भी किया था, सामने वाला सहन या अहाता। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. इवनिंग नमाज हम मगरिब की नमाज को कह सकते हैं। टूरिस्ट वर्ड हमने पहले भी किया है, स्याह को कहा जाता है। तो चलिए इसका डायरेक्ट उर्दू में तर्जुमा करते हैं। शाम के वक्त मस्जिद के सामने पार्क में बड़ी तादाद में स्याह और तुर्क लोग अज़ान मगरिब सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. इसके अंदर बिलीवर्स ईमान वाले लोग, मोमिनीन भी हो सकते हैं, ईमान वाले भी कहा जा सकता है, और डिवाइन लव है इसको खुदा की मोहब्बत उर्दू में हम कहेंगे। और तर्जुमा इसका करेंगे, मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और इसी तरह ईमान वालों के दिल इल्हामी मोहब्बत से। इसको एक और तरीके से भी अगर दोनों को कंबाइन करें हम क्लॉजेस को, तो मस्जिद रोशनियों से और उसी तरह ईमान वालों के दिल इल्हामी मोहब्बत से भर जाते हैं। Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. Visitors ज़ायरीन को, विजिट करने वालों को, जो सैर पर आने वाले होते हैं उनको कहा जाता है। और लॉस्ट का मतलब होता है खो देना या किसी चीज़ का ज़ाया हो जाना। उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं, अगरचे साल हर साल में मस्जिद का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो चुका है, फिर भी इसने अपने ज़ायरीन की मोहब्बत को कम नहीं होने दिया। या ये भी कहा जा सकता है, फिर भी इसके ज़ायरीन की मोहब्बत कम नहीं हुई है। The masjid is still one of the most visited monuments of the world. Monument word सबसे पहले हमने किया था यादगार, और विजिट का मतलब सैर की जाने वाली या देखी जाने वाली। इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा, ये मस्जिद अब भी दुनिया की कसरत से सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। After completing the translation of the lesson, let's come to the question and answer part. We have two types of questions, text question and comprehension question. Here are the answers that are being provided. They are for text questions as well as for comprehension questions. You can either copy these ones or write your own answers taking help from the text, but don't forget to learn them by heart. Well, dear students, before we meet again, I want all of you to practice English to Urdu translation of this unit and write and learn answers of the questions, text question as well as comprehension question. Till then everyone, Allah Hafiz.